Today we will be discussing triggers. What is a trigger? A trigger is a stored PL/SQL program unit associated with a specific database table. Trigger is a stored PL/SQL program. PL/SQL के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, in the same manner we will create a program for triggers in a PL/SQL. Without using PL/SQL block, we cannot create a trigger. That's why trigger is known as stored PL/SQL program unit that is associated with a specific database table. It means basically triggers are created for a table. A trigger will always be associated with a table. In which manner it will be associated with a table, it will be discussed later on. Triggers are exactly same as procedures and functions. You know students, procedures and functions Yes, sir. Yes, sir. डिस्कस किए थे हमने. सी में हमने पढ़े हैं, सी प्लस प्लस में हमने पढ़े हैं, जावा में हमने पढ़े हैं. बट इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा वी हैव वर्कड ओनली विद फंक्शंस. बट इन ओरेकल, in any DBMS supports both procedures as well as functions. I have already told you in previous classes what is the difference between procedure and functions. Can anyone tell me what is the difference between procedure and function? बता सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसीजर और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? ओके, चलिए. कैन यू गिव मी any procedure name which you are working with Oracle, which you are working with PL/SQL? स्टूडेंट्स, PL/SQL में जो आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में आपने कोई प्रोसीजर या फंक्शन यूज किए हैं? किसी भी एक प्रोसीजर या फंक्शन का नाम बता सकते हैं? हेलो स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं? यस सर. किसी भी एक प्रोसीजर का नाम बता दीजिए और एक फंक्शन का नाम बता दीजिए जो आपने PL/SQL ब्लॉक में या Oracle में यूज किया है. सर DBMS आउटपुट का जो हम लगाते हैं. ये क्या है? ये प्रोसीजर है और फंक्शन है? फंक्शन. फंक्शन. और किसी दूसरे फंक्शन का नाम बता दीजिए. भाई बहुत सारे फंक्शन यूज किए हैं हमने PL/SQL ब्लॉक में या SQL प्रॉम्प्ट पर. किसी भी फंक्शन का नाम बता दीजिए. सर मैक्स, मिन. बिल्कुल सही. मैक्स, मिन, सम, AVG, काउंट, अपर, लोअर, इनिट, कैप यूज किए हैं ये सब फंक्शंस हमने. रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? सर मोड. पार्डन, कौन सा फंक्शन बताया? मोड सर. मोड. बिल्कुल सही. ऑल दीज आर दी फंक्शंस. और अमन, जो ये आप बता रहे हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ प्रोसीजर. Students, and what is the difference between procedure and function? There is only one difference between procedure and function. A procedure cannot return a value, function always returns a value. Whenever we are working with C, C++ or Java, we will be defining only functions. If function returns a value, we will specify its return type. If function does not return a value, we will specify its return type as void. But while we are working with DBMS, if we want to define such function which will be returning a value, we will define a function. But if we are want to define such function which cannot return a value, then we will not define a function, we will define a procedure. Clear, students? Yes sir. Now they are saying triggers are exactly same as procedures and functions. Triggers बिल्कुल procedure और functions की तरह ही होते हैं, but there is a difference between trigger and procedure or functions. What is the difference? Procedures and functions are executed whenever they are called, but triggers are not called. Triggers will be executed implicitly because triggers are associated with a particular event on a particular table. Therefore,
whenever we will be performing that event on that particular table, associated trigger will automatically be executed. देखिए इन्होंने क्या कहा है, they are saying triggers are same as procedures and functions except that procedures and functions are executed whenever they are called, but triggers are executed automatically whenever the table is affected by any SQL operation. Clear students? Yes sir. चलिए, तो ट्रिगर हमारे बिल्कुल प्रोसीजर और फंक्शंस की तरह से होते हैं, बस ट्रिगर और प्रोसीजर में एक ही डिफरेंस होता है, प्रोसीजर्स को हमें कॉल कराना पड़ता है, ट्रिगर्स को हमें कॉल नहीं करना पड़ता। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जब हम ट्रिगर्स को कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, triggers are associated with a particular table. Therefore, whenever we will be performing an SQL operation on that particular table, associated triggers will be executed. Such as they are saying, Oracle allows you to define procedures that are implicitly, means automatically executed when an insert, update or delete statement is issued against the associated table. These type of procedures are called triggers. Clear students? समझ आया? Yes sir. अब क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन अभी तक हमें यह समझ नहीं आया है कि ट्रिगर्स क्यों बनाते हैं। ये हमें समझ आ गया ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर्स आर सेम एज प्रोसीजर्स और फंक्शंस। ट्रिगर्स कब कॉल होते हैं ये हमें समझ आ गया। ट्रिगर्स आर एग्जीक्यूटेड इम्प्लिसिटली व्हेनेवर वी परफॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर टेबल। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाई ट्रिगर्स आर क्रिएटेड? So therefore, before knowing the parts of a trigger, before knowing how to define a trigger, before using a trigger, first of all we must be knowing why we create a trigger, what are the advantage of using triggers. Clear students? Yes sir. Suppose we have created a table by the name EMP. बनाई हुई है सभी स्टूडेंट्स ने। EMP table consists of employee details such as employee number, employee name, department number, manager number, salary, job and hire date. Now we are inserting data in this table. हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड चलाएंगे? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड चला के हमने टेबल में डेटा इंसर्ट किया, और मान लीजिए हमने नेम इंसर्ट किया स्मॉल में अमित, तो टेबल में जो डेटा इंसर्ट होगा वो स्मॉल में अमित इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, उसमें हमने टेबल में डेटा में कैपिटल में सुमित इंसर्ट किया, तो अब टेबल में डेटा कैपिटल में सुमित इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, उसमें हमने टेबल में डेटा डाला ए कैपिटल बाकी स्मॉल में। फिर हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसमें हमने टेबल में डेटा डाला अरविंद, अरविंद का हमने ए और आर कैपिटल बना दिया, बाकी स्मॉल बना दिए। इट मींस as you will type the data will be inserted in the same manner in a table. Clear students? Yes sir. Yes sir. अब अगर आपको टेबल में कोई डेटा सर्च करना है, या अगर आप टेबल से डेटा रिट्रीव कराते हैं, सपोज आपसे कहा गया डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, तो आप कमांड चलाएंगे सेलेक्ट ename from EMP, name of all the employees will be displayed. Clear students? Yes sir. लेकिन वो जो नेम Yes, डिस्प्ले होंगे, आप देखेंगे कोई नेम कैपिटल में डिस्प्ले हो रहा है, कोई नेम स्मॉल में डिस्प्ले हो रहा है, कोई नेम में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है बाकी स्मॉल है, किसी नेम में फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल है बाकी कैपिटल है। जिस मैनर में आपने टेबल में डेटा इंसर्ट किया था, डेटा विल बी डिस्प्लेड इन द सेम मैनर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो इट डज नॉट लुक लाइक गुड, अच्छा दिखाई नहीं देगा। सपोज नाउ यू आर सर्चिंग अ रिकॉर्ड, अब मान लीजिए आप रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, यू वांट टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई हुज नेम इज अमित। मान लीजिए आपको अमित एम्प्लॉय की सभी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, तो आपने कमांड चलाई सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP वेयर ename इक्वल टू। अब आपको कैसे पता चलेगा आप अमित स्मॉल में लिखें या आप अमित कैपिटल में लिखें या आप अमित को ए कैपिटल लिखें बाकी स्मॉल लिखें? मान लीजिए आपने अमित पूरा स्मॉल में लिख दिया, लेकिन टेबल में अवेलेबल है अमित पूरा कैपिटल में, तो ये अमित के रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा। मान लीजिए आपने अमित का ए कैपिटल बना दिया, बाकी सारा केस स्मॉल लिखा, लेकिन टेबल में अमित कैपिटल में है, तो आपका ये डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर।
तो कुछ हमें कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। हमने कहा हम चाहते हैं हम जब भी ईएमपी टेबल में डेटा इंसर्ट करें, नेम मस्ट बी इंसर्टेड इन अपर केस। नेम हमेशा अपर केस में ही इंसर्ट हो। लेकिन ये चेक हम ऑपरेटर पे नहीं लगा सकते हैं, ऑपरेटर की मर्जी है। ऑपरेटर ने अगर स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है तो नेम स्मॉल लेटर में जाके इंसर्ट होगा, अगर ऑपरेटर ने कैपिटल लेटर में टाइप किया है तो नेम कैपिटल लेटर में जाके इंसर्ट होगा, अगर यूजर ने ए कैपिटल बाकी स्मॉल किए हैं तो नेम ए कैपिटल बाकी स्मॉल में होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. So now what we are required, but we want data must be inserted in uppercase instead of how data is being typed by the student. हम चाहते हैं स्टूडेंट कैसे भी डेटा टाइप करे, ऑपरेटर डेटा कैसे भी टाइप करे, चाहे वो स्मॉल में टाइप करे चाहे वो कैपिटल में टाइप करे, बट डेटा मस्ट बी इंसर्टेड इन अपर केस इन आवर टेबल। हमारी टेबल में जो डेटा जाए वो कैपिटल में ही जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. So now what we are required? We are required to convert student name in uppercase at the time of insertion of any record in EMP table. हमें क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं जब भी कोई भी ऑपरेटर EMP टेबल में नया डेटा इंसर्ट करे तो डेटा इंसर्ट होने से पहले ऑपरेटर ने जो डेटा डाला है हम उस डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट कर दें। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जब टेबल में डेटा जाएगा तो टेबल को डेटा किस में मिलेगा? कैपिटल में मिलेगा, एंड नेम विल ऑलवेज बी इंसर्टेड इन अपर केस। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So to do so, we will define a procedure that will convert the name in uppercase. Clear students? Yes, sir. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक प्रोसीजर बनाएंगे और उस प्रोसीजर में ऐसा कोड करेंगे कि वो नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर दे। बना लेंगे, हमें आता है अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन होता है अपर। क्लियर स्टूडेंट? बना लेंगे ये प्रोसीजर। Yes, sir. But this procedure must be executed, must be fired automatically, implicitly whenever any user perform insertion operation at the table EMP. लेकिन होना क्या चाहिए? ये प्रोसीजर अपने आप कॉल हो, अपने आप एग्जीक्यूट हो जब भी कोई भी यूजर EMP टेबल में डेटा इंसर्ट करे। Therefore we will define a trigger. तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगर ही अपने आप कॉल होते हैं। प्रोसीजर्स और फंक्शंस अपने आप कॉल नहीं होते हैं। प्रोसीजर और फंक्शन को जब भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वी हैव टू कॉल देम, बट ट्रिगर इज सच काइंड ऑफ प्रोसीजर which will be executed, which will be fired implicitly. Clear students? Yes, sir. Yes, इसको करने के लिए हम क्या करें? एक ट्रिगर बना लें। बताइए स्टूडेंट्स, कौन सी टेबल के लिए बनाना है ट्रिगर? EMP के लिए, सर। EMP के लिए। और उस ट्रिगर को कब एग्जीक्यूट कराना है? जब सर e-name एंटर करें। इनपुट बिफोर इंसर्ट ऑन EMP। Yes, sir. क्लियर? समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द ट्रिगर। ये ट्रिगर के पीछे कंसेप्ट होता है। ट्रिगर बनाने के लिए हमें ये लॉजिक फॉलो करना होता है। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया है तो अब ये चैप्टर आपको ये टॉपिक ट्रिगर इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ ट्रिगर। ट्रिगर क्यों बनाते हैं? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ ट्रिगर? वैसे मैं आपको बता चुका हूं, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था उसमें आपको समझ आ गया है ट्रिगर के कितने पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब हम उनके टेक्निकल नेम सीखेंगे। बेसिकली अ ट्रिगर हैज फॉलोइंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रिगरिंग इवेंट। नेम से कुछ समझ आ रहा है? ट्रिगरिंग इवेंट क्या समझ आ रहा है नेम से? ट्रिगर को स्टार्ट करना। When trigger will be executed, Event when को। trigger will be called। ट्रिगरिंग इवेंट में हम ये बताएंगे ट्रिगर कब कॉल होगा। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसके लिए ट्रिगरिंग इवेंट क्या होगा? अपर केस बिफोर इंसर्ट ऑन EMP। उसके लिए ट्रिगरिंग इवेंट था कि वो ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होना है? जब भी हम EMP टेबल पे डेटा इंसर्ट करें उससे पहले। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट है ट्रिगर का
ट्रिगर कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है आपने जो ट्रिगर बनाया है वो ईएमपी टेबल पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले एग्जीक्यूट होगा। अब आप चाहते हैं वो हमेशा, जब भी हम ईएमपी टेबल पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो ट्रिगर हमेशा एग्जीक्यूट हो। तो इसका मतलब है आपको ट्रिगर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, फिर आप ये सेकंड वाला पार्ट ट्रिगर में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमेशा एग्जीक्यूट ना हो, आप कोई कंडीशन देना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ट्रिगर एग्जीक्यूट ना हो। इट मींस यू वांट टू अप्लाई रेस्ट्रिक्शन ऑन अ ट्रिगर, then you will be working this part of a trigger which is known as trigger constraint or restriction, but this part is optional as I have told you. Clear student? समझ आया? Yes. Yes, sir. Last one is Yes, sir. trigger Yes, sir. action. Trigger action means what actions are to be performed whenever a trigger will be executed. जब ट्रिगर कॉल होगा, जब ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या काम करे। जैसे हमारे एग्जांपल में हमें ट्रिगर से क्या कराना था, कैपिटलाइज, इस नेम को कैपिटलाइज करना था। बिल्कुल ठीक बात है। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गए तीनों पार्ट? यस सर। दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में इन्होंने बताया है ट्रिगरिंग इवेंट। बेसिकली अ डेटाबेस ट्रिगर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रिगरिंग इवेंट। अ ट्रिगरिंग इवेंट इज द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कॉज द ट्रिगर टू बी फायर्ड। ट्रिगरिंग इवेंट का मतलब है when a trigger will be executed, on which SQL operation trigger will be executed। जो ट्रिगर आप बना रहे हैं वो ट्रिगर आपको कब एग्जीक्यूट कराना है, वो ट्रिगर आपको किस SQL स्टेटमेंट पे, किस टेबल के लिए एग्जीक्यूट कराना है। A triggering event can be insert statement, update statement or delete statement specific for a specific table। तो ट्रिगरिंग इवेंट में हम क्या देते हैं, SQL स्टेटमेंट और टेबल का नाम। Second one is trigger constraint and restrictions. As I have already told you, a trigger restriction specifies a logical expression। यहां पर एक हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है कंडीशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स मिले, और ट्रू या फॉल्स हमें केवल किसका आंसर मिलता है, कंडीशन का आंसर मिलता है। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब है हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द ट्रिगर टू फायर। अगर आपने वो कंडीशन दी है तो आपका ट्रिगर हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका ट्रिगर सबसे पहले इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। इफ दिस कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, trigger will be executed. If this condition evaluates to false, trigger will not be executed. The trigger action is not executed if the trigger restriction evaluates to false. A trigger restriction is an option available for triggers that are fired for each row। इन्होंने कहा है अगर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ट्रिगर आपका हमेशा एग्जीक्यूट हो, तो आप कोई कंडीशन नहीं देंगे। उस केस में आप देखें, उस केस में ट्रिगर विल बी फायर्ड फॉर ईच रो। ट्रिगर सभी रो के लिए फायर होगा। इट्स फंक्शन इज टू कंडीशनली कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रिगर। अ ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन इज स्पेसिफाइड यूजिंग अ व्हेन क्लॉज। अगर आप ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं तो आप व्हेन क्लॉज यूज करेंगे और व्हेन के साथ देंगे कंडीशन। अब आपका ट्रिगर तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ट्रिगर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Last part of a trigger is trigger action. As we have already discussed, trigger action means what actions are to be performed whenever a trigger is executed। जब ट्रिगर एग्जीक्यूट हो तो उससे आप क्या काम कराना चाहते हैं, क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ये आप ट्रिगर एक्शन के अंदर देंगे। आ ट्रिगर एक्शन, तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पर आप एक पूरा PL/SQL ब्लॉक बनाएंगे और PL/SQL ब्लॉक के 3 सेक्शन आप वहां पे यूज कर सकते हैं, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। बिगिन में आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एक्सेप्शन में अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करानी है, एंड रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ द ब्लॉक। A trigger action is the PL/SQL block that contains the SQL statements and PL/SQL code to be executed whenever a triggering statement यानी कि event is issued and the trigger restriction evaluates to true। Clear students? यस सर। समझ आ गया?
देखिए कैसे Yes, बनाते sir. हैं, सिंटैक्स देख लीजिएगा। अब ट्रिगर बनाने के लिए सिंटैक्स होगा क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। और रिप्लेस ऑप्शनल है, आप सिंपल इतना भी दे सकते हैं क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम। अगर इस नाम से ट्रिगर पहले से बना हुआ है देन दिस विल जनरेट एन एरर एंड ट्रिगर विल नॉट बी क्रिएटेड। लेकिन अगर आप देते हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर ट्रिगर नेम तो क्या होगा, अगर पहले से बना हुआ ट्रिगर है तो ये इस ट्रिगर को ओवरराइट कर देगा। इसलिए जब भी हम ट्रिगर बनाते हैं तो हम सिंटैक्स यूज करते हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर ट्रिगर नेम। इससे ट्रिगर बन जाएगा। यस सर। बन जाए। अब हमें ट्रिगर के लिए कितने पार्ट स्पेसिफाई करने हैं? 2 बार। 3। नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई 3 पार्ट्स ऑफ अ ट्रिगर, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ट्रिगर के लिए 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ट्रिगर इवेंट, सेकंड इज action. ट्रिगर Instant. रेस्ट्रिक्शन एंड थर्ड वन इज अच्छा। ट्रिगर एक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो अब सबसे Yes, पहले sir. हम देंगे ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट मींस हमें ट्रिगर कब एग्जीक्यूट कराना है। अब ट्रिगर एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। जो हम एसक्यूएल कमांड चला रहे हैं, या तो उस एसक्यूएल कमांड के एग्जीक्यूट होने से पहले हमें ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है, या उस एसक्यूएल कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर हम वही कीवर्ड यूज करेंगे बिफोर और आफ्टर। अगर आपने बिफोर दिया है तो एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। मींस जैसे ही आप इंसर्ट कमांड देंगे, इंसर्ट कमांड देने के बाद पहले ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, फिर इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आफ्टर कीवर्ड यूज किया है तो जैसे ही आपने इंसर्ट कमांड दी, पहले इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंस्टेड ऑफ। नेम से समझ आ गया होगा, अगर आप बिफोर और आफ्टर देते हैं तो ट्रिगर भी एग्जीक्यूट होगा और जो एसक्यूएल कमांड आपने दी है वो भी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आप इंस्टेड ऑफ ऑप्शन यूज करते हैं देन ओनली ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड, एसक्यूएल कमांड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। मान लीजिए आपने इंसर्ट कमांड दी लेकिन आपने ट्रिगर इंस्टेड ऑफ के साथ बनाया था, तो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा और इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. देन सर उसके एक बाद बार बता देंगे, दे। एक बार और बता दें। चलिए, जब भी हम ट्रिगर बनाते हैं, ट्रिगर बनाने के लिए हमें 3 चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, बिकॉज देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ ट्रिगर। फर्स्ट वन इज ट्रिगरिंग इवेंट। ट्रिगरिंग इवेंट का मतलब है ट्रिगर कब एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर और आफ्टर और इंस्टेड ऑफ। उसके बाद देते हैं ठीक है। कमांड, किस कमांड के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है। अगर डिलीट कमांड के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं डिलीट। अगर इंसर्ट कमांड के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं इंसर्ट। अगर अपडेट कमांड के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं अपडेट। लेकिन अगर आप एक ही ट्रिगर को तीनों कमांड के लिए एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वैसे जनरली ऐसी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। डिलीट के लिए हम अलग ट्रिगर बनाते हैं, इंसर्ट के लिए हम अलग ट्रिगर बनाते हैं, अपडेट के लिए हम अलग ट्रिगर बनाते हैं। बट इफ यू वांट टू परफॉर्म सेम एक्शन फॉर एनी कमांड, अगर आप डिलीट इंसर्ट अपडेट सभी के लिए एक ही काम कराना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक ही ट्रिगर बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप तीनों कमांड दे देंगे, डिलीट और इंसर्ट और अपडेट। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। लेकिन डिलीट अपडेट इंसर्ट अपडेट इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। आप पहले अगर तीनों दे रहे हैं तो पहले आप इंसर्ट नहीं लिख सकते हैं या पहले आप अपडेट नहीं लिख सकते हैं। अगर आप केवल एक ही यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल उसी को लिखेंगे। मान लीजिए डिलीट पे ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है तो केवल यहाँ डिलीट लिखेंगे। अगर इंसर्ट पे ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है तो केवल यहाँ इंसर्ट लिखेंगे। अगर अपडेट पे ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है तो केवल यहाँ अपडेट लिखेंगे। लेकिन आप जो ट्रिगर बना रहे हैं, सपोज आप उस ट्रिगर को डिलीट और अपडेट दोनों के लिए एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे डिलीट और अपडेट। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यू कैन नॉट राइट डाउन अपडेट और डिलीट। अपडेट और डिलीट नहीं लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कहाँ पे सर? Yes, sir. जब ट्रिगर बनाएंगे, सीक्वेंस सेव रखना है। ठीक है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑफ फील्ड नेम, अगर वो ट्रिगर आपको तभी एग्जीक्यूट कराना है जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फील्ड नेम भी देंगे,
किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे फील्ड नेम भी देंगे। किसी पर्टिकुलर फील्ड डिलीट में फील्ड का कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि जब हम डिलीट करते हैं तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट होता है। तो जिन जिन फील्ड्स के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट कराना है ऑन टेबल नेम, वो ट्रिगर किस टेबल के लिए एग्जीक्यूट हो। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया कि नहीं? यस यस सर। सर। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ट्रिगर इवेंट। सेकंड पार्ट आता है ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट। अगर आप उस ट्रिगर को हर बार एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने डिलीट के लिए ट्रिगर बनाया और हम हर डिलीट पे उस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं देंगे, सिंपल लिखेंगे फॉर ईच रो। लेकिन अगर आप हमेशा एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ट्रिगर हमारा तभी एग्जीक्यूट हो जब हम डिपार्टमेंट नंबर 10 का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 20, 30 या 40 का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं तो ट्रिगर एग्जीक्यूट ना हो, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन देने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं व्हेन, और जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं, जैसे हमने कंडीशन दे दी व्हेन DPTNO इक्वल टू 10, इसका मतलब है अब हमारा ट्रिगर केवल तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ये था Yes, हमारा sir. सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है ट्रिगर का एक्शन। What actions are to be performed whenever a trigger is called? जब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो तब क्या काम कराना है, उसके लिए हम देते हैं ट्रिगर एक्शन। ट्रिगर एक्शन में हम PL/SQL ब्लॉक बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए बिगिन और एंड लिखा हुआ है। बिगिन और एंड में आप वो सारे SQL स्टेटमेंट्स लिख देंगे या वो सारे स्टेटमेंट लिख देंगे जो भी काम आपको ट्रिगर के एग्जीक्यूशन से कराना है। जैसे अगर आपको नेम को स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कराना है तो ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे कि नेम हमारा स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको कोई और काम कराना है तो आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, दिस sir. वाज ऑल अबाउट ट्रिगर्स। ये किसके बारे में था? ट्रिगर्स के बारे में था। अब एक एग्जांपल बनाते हैं तो उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सेम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। अभी हमने डिस्कस किया था, हम चाहते हैं, हमने जो EMP टेबल बनाई हुई है, EMP टेबल में जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो हम चाहे यूजर चाहे स्मॉल में डाले, यूजर चाहे कैपिटल में डाले, बट डेटा मस्ट बी इंसर्टेड इन अपर केस। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए Yes, sir. पहले हम EMP टेबल में डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। कमांड लाइन पे चले गए, यहाँ पे हमने कमांड चलाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। देख रहे हैं ये हमारे पास EMP टेबल है। Yes, sir. Yes, इसमें हम sir. नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज। सबसे पहले हमने डालना है एम्प्लॉय नंबर, हमने डाला 1 2 3 4। फिर हमने डालना है ई नेम, हमने डाला मान लीजिए अमित। फिर हमने डालनी है जॉब, मान लीजिए हमने जॉब डाली मैनेजर। फिर हमने डालना है मैनेजर नंबर, मान लीजिए हमने मैनेजर नंबर डाल दिया 7839। फिर हमने डालनी है हायर डेट, मान लीजिए हमने हायर डेट डाल दी, दैट इज 1 मई 20। देन हमने इंसर्ट करना है सैलरी, मान लीजिए हमने सैलरी इंसर्ट कर दी 50। देन हमने इंसर्ट करना है कमीशन, मान लीजिए कमीशन हमने डाल दिया 500। देन हमने डालना है डिपार्टमेंट नंबर, मान लीजिए हमने डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया 30। डेटा हैज बीन इंसर्टेड। Inserted. Yes, sir. चेक करा लेते हैं। आप देख रहे हैं डेटा इंसर्ट हो गया। Yes, sir. कैसे इंसर्ट हुआ है Yes, sir. हमें? स्मॉल में इंसर्ट हुआ है कि कैपिटल में? Sir, small में. क्यों स्मॉल में क्यों इंसर्ट हुआ है? Small में लिखा था. क्योंकि हमने Command. स्मॉल में लिखा था। बिल्कुल ठीक बात है। एज वी गिव द डेटा, डेटा विल बी इंसर्टेड इन द सेम केस। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पर हम नेम देते हैं कैपिटल में। करने बाद इंसर्ट हो गया।
हो गया यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे Yes, sir. इंसर्ट हुआ, बड़ा कैपिटल में, में क्योंकि हमने कैसे Capital. टाइप किया था, कैपिटल में टाइप किया था। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट हो गया, चेक करा लेते हैं कैसे इंसर्ट हुआ। एस स्मॉल कैपिटल बाकी स्मॉल, मींस एज यू आर सीइंग डेटा इज बीइंग इंसर्टेड इन द सेम मैनर इन वी आर गिविंग। क्या हम ऐसे ही चाहते हैं? No, sir. No, we want data must be insert, name must be inserted in uppercase. Either we are giving in any of the case. हम चाहे डेटा किसी भी केस में दें, लेकिन डेटा कैसे इंसर्ट होना चाहिए? कैपिटल में इंसर्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब यूजर यहाँ इंसर्ट कमांड चलाता है, इंसर्ट कमांड लिखने के बाद जब यूजर एंटर प्रेस करता है, जैसे ही यूजर एंटर प्रेस करता है, इंसर्ट कमांड विल बी गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन। इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। तो हम इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट होने से पहले हम चेक करा लें यूजर ने नेम स्मॉल में डाला है या कैपिटल में डाला है। अगर यूजर ने नेम कैपिटल में डाला है, वेल एंड गुड। अगर यूजर ने नेम कैपिटल में नहीं डाला है, तो हम उसे कैपिटल में कन्वर्ट करा दें, उसके बाद इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट होने दें। अब अगर पहले नेम कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, देन इंसर्ट कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड, देन डेटा विल बी इंसर्टेड इन द अपर केस। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? Trigger. ट्रिगर। ठीक है, तो ट्रिगर बनाते हैं। ट्रिगर कहाँ बनाए जाते हैं? PL/SQL में विद इन PL SQL ब्लॉक। तो हम PL SQL Yes, का sir. प्रोग्राम बना लेते हैं, जिस प्रोग्राम को हमने नाम दे दिया INS ट्रिक। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नेम दे दिया INS ट्रिक। No. देखिएगा, अब PL SQL प्रोग्राम फाइल हैज बीन क्रिएटेड बाय द नेम INS ट्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ Yes, पर sir. हमें Yes, sir. ट्रिगर बनाना है। तो ट्रिगर बनाने के लिए हमने सिंटैक्स यूज किया था, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। जो भी आप ट्रिगर को नेम देना चाहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर Yes, Okay, sir. सजेस्ट कर सकते हैं क्या नेम रखें ट्रिगर का? Trigger 1 रख लीजिए सर, कुछ भी रख वी लीजिए। कैन गिव एनी नेम टू द ट्रिगर। क्लियर? Yes. लेकिन ट्रिगर नेम आप ऐसा दें ताकि आपको नेम से ही पता चल जाए ये ट्रिगर आपने क्यों बनाया है। क्योंकि आज तो आपको याद है आप ये ट्रिगर क्यों बना रहे हैं, लेकिन अगर आप आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स आप पता करना चाहेंगे कि ये ट्रिगर आपने क्यों बनाया था, तो आपको याद नहीं होगा। वो आपको कौन बताएगा? ट्रिगर का नाम बताएगा। इसलिए मैंने ट्रिगर का नेम दिया अपर अंडरस्कोर ईनेम अंडरस्कोर ट्रिग। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया अपर ईनेम ट्रिग, जिससे पता चल रहा है कि ये ट्रिगर ईनेम को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. अब क्या दें? अब क्या दें? ट्रिगर इवेंट। अब हम देखें Event. ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट का मतलब है इस ट्रिगर को कब एग्जीक्यूट कराना है। कब कराना है? बिफोर इंसर्ट ऑन EMP। कब एग्जीक्यूट कराना है? जब भी हम EMP टेबल पे कोई भी डेटा इंसर्ट करें, उससे पहले एग्जीक्यूट कराना है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब उसके बाद देंगे ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन। हमें ट्रिगर पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है? No, sir. नहीं लगानी। जब भी ट्रिगर डेटा इंसर्ट करें तब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम देंगे फॉर ईच रो। For each row. क्लियर? उसके बाद अब देंगे ट्रिगर एक्शन। ट्रिगर से क्या काम कराना है? ट्रिगर एक्शन इज टू बी गिवन विद इन बिगिन एंड एंड ब्लॉक। ट्रिगर एक्शन जो आपने देना है वो आप बिगिन और एंड के अंदर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब Yes, sir. यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमें क्या देना है? बताइए क्या देना है? बताइए क्या करना है? एक्शन एक्शन आएगा जो भी काम करवाना। क्या काम कराना है? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। अपर में चेंज करना है, Capitalize. नेम को कैपिटलाइज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा लॉजिकल है।
नाउ देयर कैन बी टू नेम्स। अब हमारे पास दो नेम हो सकते हैं, एक तो वो जो टेबल में ऑलरेडी है, एक वो जो यूजर ने इंसर्ट किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। हमें Yes, कौन से sir. नेम को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, जो यूजर ने दिया है उसे या जो टेबल में ऑलरेडी है? जो यूजर सर, प्रोवाइड करा रहा जो है। यूजर ने दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए यूजर ने जो दिया है वो नया नेम दिया है। नए नेम को एक्सेस करने के लिए कीवर्ड होता है कॉलन न्यू। क्या बोलते हैं इसको? कॉलन न्यू। कॉलन न्यू मीन्स नए वाला। अगर जो टेबल में ऑलरेडी है आपको उसे एक्सेस करना है तो आप लिखते कॉलन ओल्ड। These are two environment variables. ये दो बिल्ट इन एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम पुराने वाली और नई वाली किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इफ वी वांट टू एक्सेस ओल्ड वैल्यू that is already available in the table, we will be working colon old. If we want to work with new value that is given by the user, we will be working colon new. बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसकी वैल्यू एक्सेस करनी है? नई वाली ई नेम की। क्लियर? जब यूजर इंसर्ट कमांड चलाएगा तो यूजर EMP NO की भी वैल्यू देगा, ई नेम की भी वैल्यू देगा, DBT NO की वैल्यू भी देगा, जॉब की वैल्यू भी देगा, सैलरी की वैल्यू भी देगा, कमीशन की वैल्यू भी देगा, हायर डेट की वैल्यू भी देगा। बट वी हैव टू कैपिटलाइज विच वैल्यू? ई नेम्स वैल्यू। E-name. क्लियर? तो हमने कहा हमें किसको एक्सेस करना Yes, है? उन sir. जो नई वैल्यू यूजर ने दी है ई नेम को एक्सेस करना है, तो हमने लिखा कॉलन न्यू डॉट ई नेम इक्वल टू, उसको किसमें कन्वर्ट कर लें? अपर में, कॉलन न्यू डॉट ई नेम। जो यूजर ने नए वाली वैल्यू दी है उसको अपर फंक्शन लगा के अपर में कन्वर्ट करके नई वैल्यू में डाल दें। अब इंसर्ट तो अपने आप होगा, कौन सी कमांड इंसर्ट करेगी? इंसर्ट कमांड। बस हमने क्या किया, इंसर्ट कमांड में जो हमें नेम मिला था, हमने इंसर्ट कमांड को टेबल पे चलने से पहले अपर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सेव कीजिएगा, सेव, यहां से बाहर आ जाइएगा, वापस कमांड लाइन पे चलते हैं।